So in today's video, we are going to talk about a very important essay on the subjection of women that was written by John Stuart Mill in 1869. This particular essay is considered a foundational text when it comes to feminist literary criticism because it talks voraciously about the gender inequality and the legal rights of the woman in particular. This particular essay is very important for you to understand because in recent papers we have seen exact statement based questions coming from them, which makes it very important for you to understand this essay and the core argument that was given by John Stuart Mill for you to crack questions from this particular essay. As I already told you, this essay is written by John Stuart Mill. It is very important for you to know a little bit about this particular writer because he was someone who was considered the first feminist writer. He was a male. When you are going to study feminist literary criticism, mostly and majorly you are going to study the female feminist critics and writers who came up front and started to talk about the female perspective, the female rights, and what female feel and how they want to be seen in this patriarchal society. He was that first male who was considered a feminist writer जो females and women के point of view को सामने रखते हैं and उनके legal rights के बारे में बात करते हैं. So as you can see dear students, I would like to take your attention over his time period कि इनका जन्म होता है 1806 से लेके 1873 की इनकी timeline है. You can clearly see कि this was the time when Victorian era was blooming and Victorian era हमारे पूरे British literature की history में एक ऐसा era माना जाता है which is famous for stereotyping the gender roles, जहाँ पर male takes the upfront position in the society where he dominates the society, dominates the woman, and female is considered or stereotyped of being submissive and वो आपके domestic chores में ही associate की जाती है. सो विक्टोरियन जो रूल्स थे एंड विक्टोरियन आई वुड से जो आपके नॉर्म्स बनाए गए थे वर वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन यू कंसिडर ऑल द एरास ऑफ आवर ब्रिटिश लिटरेचर. सो ये आपके जॉन स्टुअर्ट मिल एक ब्रिटिश फिलोसोफर हैं, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं एंड ही इज़ अ सिविल सर्वेंट. यू आर गोइंग टू इफ यू आर गोइंग टू डिग डीप इन टू हिज बायोग्राफी यू आर गोइंग टू कम टू नो दैट ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड ही वॉज अ पार्लियामेंटेरियन एंड पार्लियामेंट के अंदर ही वॉज द फर्स्ट मेल जो आगे बढ़कर फीमेल के राइट्स एंड उनके लीगल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बात करते हैं. नॉट ओनली दैट, ही इज कंसिडर्ड एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑफ 19th century हु टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी. आप अगर इनकी सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज के भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो यू आर गोइंग टू कम टू नो दैट ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड विद द आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म एंड दैट ही वॉन्टेड टू टॉक और ही advocated about the free market and the freedom that every person has or equal opportunities given to everyone in a market that we do not see when we see the concept of Marxism where some section of the society is above some section of the society that is bourgeois and the proletariat. So इनके बारे में आप जब भी पढ़ने वाले हो यू आर गोइंग टू कम टू नो कि ये पॉलिटिकली लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एंड ऑल्सो दैट फेमिनिज्म के केस में ही टॉक्स अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी. अकॉर्डिंग टू हिम इफ द सोसाइटी हैज़ टू बी आइडियल इट शुड रन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेमिनिज्म एंड मार्क्सिज्म. मार्क्सिज्म ऑफ कोर्स आई हैव टॉट यू मेनी अ टाइम्स वेयर वी टॉक अबाउट द इक्वालिटी or the disparity that is very much prevalent in our society where one section of the society is having fun with the money and the efforts put in by the other section of the society, the gap between the bourgeois and the proletariat. तो इन्होंने आपके एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बात की है both in terms of feminism and in terms of Marxism. You have to remember this. ठीक है, he advocates for classical liberalism जो कि free market and equal opportunities के बारे में एंड इक्वालिटी एंड फ्रीडम के बारे में बात करता है नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर फेमिनिज्म या वुमेन के केस में बट इन टर्म्स ऑफ योर इंटायर सोसाइटी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड अगर आप इनको पढ़ते हो तो यू आर गोइंग टू कम टू नो कि इनकी लाइफ का मेजर एम था
to end the prejudice against the women of Victorian society. We all have seen, being literature students, कि Victorian society is very cruel, or we can say very strict when it comes to stereotyping of gender roles, where women have been given a certain role of how they have to behave, or how कौन से स्फीयर में दे हैव टू डेडिकेट देमसेल्व्स एंड हाउ दे हैव टू गेट डोमिनेटेड बाय द मेल पेट्रियार्क ऑफ देयर सोसाइटी. सो उन सभी चीज़ों, उन प्रेजुडाइसेस को आपके जॉन स्टुअर्ट मिल ने चैलेंज करने की कोशिश की है. Let me talk a little bit about the Victorian society so that you get a very good idea when you read this essay. हमारी विक्टोरियन समाज ना काफ़ी मेल डोमिनेटेड समाज था, where patriarchal norms were dominant in your 19th century. Being literature students हमें पता है कि women were not even allowed to write, education उनको नहीं मिली हुई थी. They were just कंसिडर्ड, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप डोमेस्टिक आइडियाज़ एंड डोमेस्टिक चोर्स में ही अपने आप को डोमिनेट करें. आपका घर कैसा दिखता है, आपके कर्टन्स कैसे दिखते हैं, हाउ आर यू लुकिंग, यू शुड जस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट हाउ ब्यूटिफुल यू लुक, हाउ ब्यूटिफुल योर हाउस इज़, एंड आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो. यू डू नॉट हैव टू कंसर्न योर सेल्फ of your legal matters, of political matters, of social representation to this point कि उस टाइम पर हमारी women को voting rights तक नहीं मिले हुए थे, because this was considered कि तुम वोट देकर क्या करोगी, what do you know about politics and what kind of representation you want from our society. So you can just understand the kind of environment आपका Victorian society, Victorian समाज में रहा होगा, where women were considered the other sex और द सबॉर्डिनेट सेक्स, वेयर उनको लीगल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली सबॉर्डिनेट माना जाता था व्हेन यू कंपेयर देम टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स. मैरिड वुमेन कुड नॉट ओन प्रॉपर्टी अंटिल द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट्स ऑफ 1870 एंड 1882. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द डॉट्स कि इसी टाइम पर आपकी जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है वो स्टार्ट हो जाती हैं, where women start coming up front and they start to talk about the legal rights, and they start to talk about the working rights and the rights upon their own body, where women were just seen as a machine कि ये बच्चे पैदा करने की बस ये मशीन है, चाहे उनकी इच्छा है चाहे उनकी इच्छा नहीं है, उनकी खुद की ही बॉडी पर उनका कोई अधिकार नहीं था. सो दीज वर सम ऑफ द राइट्स जिनको सामने लेकर आते हैं हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल, एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट MPs to advocate for women's suffrage. Now you being literature students must be aware of this word suffrage, where it has nothing to do with suffering but the voting rights and the legal representations of the women. अगर हमारे पास एज औरतों के पास राइट्स ही नहीं होंगे, उनको पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा होगा, तो ये मेल डोमिनेटेड समाज आपको कभी समझ ही नहीं पाएगा, आपके पर्सपेक्टिव्स को आपके लीगल लोगों के सामने कोई रखने वाला ही नहीं होगा. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वुमेन मस्ट वोट एंड मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेशन फॉर देमसेल्व्स. अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली एस्से के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस एस्से का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि ये जो सबॉर्डिनेशन हम लोगों के ऊपर थोपी गई है कि अ वुमेन इज़ अ सबॉर्डिनेट क्रीचर फ्रॉम द मेल, ये किसने बनाया, ये जो हमारी फैलिसी बनी हुई है उसको क्यों सालों सालों से औरतें खुद फॉलो करती हुई आ रही हैं. एंड दिस मेजर फ्लॉ हैज़ टू चेंज, नॉट जस्ट फॉर द इक्वलिटी ऑफ वुमेन बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. आप इमेजिन करके देखो कि जहाँ पर दो लोगों को इक्वल नहीं माना जाता है, अगर एक ऐसा समाज बन जाए वेयर दीज टू इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर टर्म्ड एज इक्वल, गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो हमारी समाज के लिए, ये डेवलपमेंट के लिए कितना बड़ा होगा. एंड हेंस इस एस्से के अंदर व्हेन योर जॉन स्टुअर्ट मिल टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन, ही पुट्स अ मार्केट एंड ही पुट्स अ ग्रोथ फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर एस्से कि ये कितना अच्छा होगा हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हमारे समाज के लिए अगर हम लोग औरतों को इक्वल ट्रीट करने लगे. सो स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर एस्से का कुछ ऐसा है कि ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जहाँ पर ये चारों चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड इंटरकनेक्ट करते हैं अपने आइडियाज़ को, टॉकिंग अबाउट द मॉरल आर्ग्यूमेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी. नाउ देयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इनकी इस एस्से को लिखने का एंड ओवरऑल कहा जाता है कि दिस वुमेन दैट इज़ हर योर जॉन स्टुअर्ट मिल की जो वाइफ है हैरियट टेलर मिल,
इनकी आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था आपके जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर, इनकी एक ओवरऑल फिलॉसफी बनाने में। एंड कहा जाता है, एंड आपके जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी कहा है, कि जितने भी मूविंग स्टेटमेंट्स एंड आइडियाज़ आपको इस एस्से में दिखाई देते हैं, इट इज़ मोस्टली गिवन बाय माय वाइफ। तो इन दोनों का कोलैबोरेटिव वर्क माना जाता है ये पर्टिकुलर एस्से। एंड ऑल्सो फैक्चुअल डिटेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो एस्से है वो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के दौरान आपके जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है। बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर के बारे में, जिसके अंदर ये सब्जेक्शन, दिस पर्टिकुलर वर्ड जो आपके सामने आता है, उसका मतलब ही होता है व्हेन यू आर डोमिनेंट, व्हेन यू आर सबमिसिव टू द अदर जेंडर। चाहे स्लेवरी के केस में आप देखने की कोशिश करते हो, आपने अपने आप को स्वीकार ही लिया है दैट यू आर द सब्जेक्टिव, और आपको दबाया जाता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर समाज। तो ये जो सब्जेक्शन हम लोग को मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने पकड़ा दिया है, इज अनजस्ट एंड आर्टिफिशियल। कौन तय करता है कि इस पर्टिकुलर जेंडर को एक दूसरे जेंडर से दब के रहना है, उसके सबॉर्डिनेट होके रहना है, उसको स्वामी की तरह देखना है? ये आपकी जो समाज ने एक नॉर्म सेट कर दिया है। क्या आपको लगता है कि ये नेचुरल है, या फिर आर्टिफिशियली हमारी हिस्ट्री में सालों सालों एंड जनरेशन तक फॉलो किया गया है, जो आपके समाज का एक नॉर्म बन गया है? सो द फर्स्ट थिंग दैट योर जॉन स्टुअर्ट मिल हैज़ टू चैलेंज इज दैट सब्जुकेशन, कि ये जो सब्जेक्शन हमारी वुमेन के ऊपर डाली गई है, कि तुम अपने मेल काउंटर पार्ट से छोटी हो, यू आर द सेकेंड सेक्स, यू आर सबॉर्डिनेट, एंड तुम्हें अपने स्वामी की सभी बातें माननी है। ये एनालॉजी ही आपके जॉन स्टुअर्ट मिल बोल देते हैं कि ये गलत है, एंड इट इज़ हिस्टोरिकली मेड बाय योर जनरेशंस। या तो दबाकर आपको की गई है, या तो कस्टम्स के नाम पर की गई है। जो एक औरत को कस्टम्स के नाम पर, आई एम जस्ट टेकिंग सिमिलर एग्जाम्पल्स या रिलेटेबल एग्जाम्पल्स जो आपको समझने में आसान हो, इसको विक्टोरियन सोसाइटी से कनेक्ट मत करना। कि आज अगर एक लड़की समाज में शादी करती है, तो देर आर सर्टन रोल्स दैट शी हैज़ टू सफाइज, देर इज अ सर्टन वे, देर इज अ सर्टन ड्रेस दैट शी नीड्स टू वेयर, देर इज अ सर्टन वे दैट शी नीड्स टू मीन्स उसको वो चीज़ें फुलफिल करनी होती हैं, बीइंग द बहू, बीइंग द बेटी, बीइंग द वाइफ ऑफ अ सर्टन फैमिली। ये कस्टम्स में हम लोग को फंसा के बता दिया जाता है कि यू बिलोंगिंग टू दिस जेंडर हैज़ टू सफाइज ऑफ दीज रोल्स, तुम्हें तो ये रोल्स पूरे करने होंगे। तो ये कस्टम अगर आप लोग एक बार सोच के देखें, किसने बनाए हैं? उन कस्टम्स को मॉरल पुलिसिंग का एक रूप देकर हम लोग के दिमाग में ये सभी चीज़ें डाल दी गई हैं, एंड उसको नेचुरल कहा जाता है कि ऐसा ही तो होता है, सालों सालों से किया जाता है, तो तुम्हें भी तो करना चाहिए। सो दिस इज समथिंग योर जॉन स्टुअर्ट मिल इज ट्राइंग टू से, कि मिल इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम बिकम्स मॉरलाइज्ड, कि ये जो कस्टम बना दिया गया है कि तुम्हें इसके नीचे दब के रहना है, या तुम्हें अपनी हर चीज़ की परमिशन इस इंसान से, इस जेंडर से मांगनी है, ये नेचुरल नहीं है, ये अनजस्ट है। यहाँ पर ही कम्स और ही ब्रिंग्स इन नोटिस ऑफ अस अ फ्रेज जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, द लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। हम सभी को पता है कि फिजियोलॉजिकली वी आर डिफरेंट देन द मैन, बट किसने हमारे दिमाग में डाल दिया कि हम वीकर सेक्स हैं दैन दिस पर्टिकुलर काउंटर पार्ट, कि हम मेल से अगर कंपेयर करें तो हम लोग क्या हैं, हम लोग वीकर हैं। द लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो पेट्रियार्की को एक तरीके से फिजिकल डोमिनेशन का रूप देकर एथिकली हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि तुम वीक हो, एंड ये जो आपके सामने मोर स्ट्रॉन्गर वर्जन है आपका, उसको आपको पूजना है या उसके अंडर रहना है। मिल कंपेयर्स द लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन विद स्लेवरी। आप जिस तरीके से एक स्लेव को, एक गुलाम को देखते हो, औरतों की भी विक्टोरियन समाज में, ये जिस समाज में इस एस्से को लिख रहे थे, वैसी ही कुछ हालत है, जहाँ पर हमारे दिमाग में ही इस तरीके से इंग्रेंड कर दिया गया है कि यू डू नॉट ट्राई टू बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर काउंटर पार्ट, आप उससे कम ही हो। सो दिस लीगल सबॉर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू द अदर इज रॉन्ग इन इटसेल्फ। ये जो एनोलॉजी एक औरत के दिमाग में या एक छोटी सी लड़की के दिमाग में बचपन से उसकी माँ ही डालने लगती है, इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने की कोशिश की है। चैप्टर 2 में ही टॉक्स अबाउट द डीकंस्ट्रक्टिंग ऑफ योर फेमिनिन नेचर। हम औरतों को, ऑल द वुमेन दोज हु आर watching this video and all the male
मेल्स एज वेल, आप लोग को बोथ द जेंडर्स इस बात को अग्री करेंगे कि बचपन से ही जिस तरीके से हमारे समाज में, जिस फैमिली में हम लोग जन्म लेते हैं, कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं. दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स, दिस इज फॉर मेल्स एज वेल. मेल्स को कहा जाता है कि आप रो नहीं सकते, तुम कमज़ोर नहीं दिख सकते, तुम्हारे आंसू नहीं दिखने चाहिए, अरे तुम तो स्ट्रांग हो, तुम्हें थोड़ी ना चोट लगती है. ऐसी कुछ चीज़ें हमारे समाज में बच्चों को उनके दिमाग में डाली जाती है. देन वुमेन आर ऑलवेज टोल्ड नॉट टू लाफ लाउडली, सिट इन अ सर्टन पोजिशन, एंड पैर फैलाकर मत बैठो, वहाँ मत जाओ जहाँ पर ज़्यादा लड़के एक साथ बैठे हुए हैं. सो सिमोन डे बिवियर की बहुत ही फेमस ये लाइन है कि वन डज नॉट बिकम बट इज मेड इनटू अ वुमन. हम औरत बन के पैदा नहीं होते हैं, पर हमारा समाज हमें एक जेंडर रोल के अंदर स्टीरियोटाइप करके औरत बना देता है. सो ये जो फेमिनिन आइडियाज़ हैं उनको डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जो कि क्लेम करते हैं कि वी कैन नॉट नो वुमेन्स नेचर बिकॉज दे हैव नेवर बीन अलाउड फ्रीडम. हमें कंडीशन किया गया है इनटू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, हमें शेप किया गया है बाय आवर एजुकेशन, बाय आवर कस्टम्स एंड बाय लीगल रिस्ट्रिक्शंस कि ये दायरे हैं तुम्हारे समाज में रहने के, एंड इन दायरों से बाहर तुम नहीं जा सकती. ये सोशल कंडीशनिंग एक औरत के दिमाग में बचपन से ही की जाती है. इंटरनलाइजेशन किया जाता है कि तुम्हें अपने पिता के सामने, अपने भाई के सामने, अपने पति के सामने यू मस्ट ओबे देम. ये कौन हमें समझा रहा है? हमारे घर की औरतें जो ये इतने सालों से फॉलो करती हुई आ रही हैं, वही एक औरत को दबने के लिए, सबऑर्डिनेट होने के लिए एंड टू बी सब्जेक्टेड टू द मेल हमें पहले ही समझाया जाता है कि यू हैव टू लिसन टू योर मेल काउंटर पार्ट. ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो सेपरेट स्फीयर्स की एक बाउंड्री सेट की है हमारे समाज ने, कि जब भी किसी लीगल टॉपिक के बारे में बात हो रही है, जब भी किसी पॉलिटिकल टॉपिक के बारे में बात हो रही है, या आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ सम जेस्चर्स ये ऐसे सामने आने लगते हैं. कुछ आइडियोलॉजीज़ इन कुछ स्फीयर्स हैं जिसमें औरतों को दूर रखा जाता है कि खाने बनाने की बात में है तब औरत हैज़ टू कम इन फ्रंट, जब बच्चों को संभालना है तब औरत की ड्यूटी सामने आ जाती है, साज संवरना या घर के डेकोरेशन की, ये जो आपकी डोमेस्टिक स्फीयर्स हैं उसमें आपकी औरत को कहा गया है कि ये तुम्हारी बाउंड्री है, इसमें तुम अपना दिमाग लगाओ. बट व्हेन इट कम्स टू योर लीगल राइट, व्हेन इट कम्स टू योर पॉलिटिकल राइट्स, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, इन सभी स्फीयर से बचपन से ही औरतों को दूर रखा जाता है. एंड वन फाइन डे जब बड़े होकर वो इन बातों को नहीं समझ पाती है तो उनको ही ब्लेम किया जाता है कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें पता भी है फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स के बारे में. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सालों सालों से ये जो सेपरेट बाउंड्री बिटवीन द स्फीयर्स ऑफ द मेल एंड द स्फीयर्स ऑफ द फीमेल जो बनाई गई है, उसको चैलेंज करने की कोशिश की है हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल में कि आपका जो स्फीयर है वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए, सिग्रीगेटेड नहीं होना चाहिए. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कोट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज नाउ कॉल्ड द नेचर ऑफ वुमेन इज एन एमिनेंटली आर्टिफिशियल थिंग. हम लोग को, औरतों को जिस तरीके से ढाला गया है वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है. अगर एक औरत को आप बचपन से ही एक मेल की ही जैसी शिक्षा एंड एक मेल की ही जैसी फ्रीडम देते हो, शी विल नॉट बिहेव लाइक द वे शी बिहेव्स टुडे. द रिजल्ट ऑफ फोर्स्ड रिप्रेशन इन सम डायरेक्शंस, अननेचुरल स्टिमुलेशन इन अदर्स. कि हम लोग के अंदर जिस तरीके से आज बिहेवियर देखा जाता है, इट इज़ समवॉट आर्टिफिशियल. देन आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस पर्टिकुलर एस्से का, जो कि है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिसको इन्होंने लीगल बॉन्डेज बोला है. आप जब किसी के स्लेव बन जाते हो, आपको कोई खरीद कर लेकर चला जा रहा है, व्हेन वी टॉक अबाउट स्लेव्स, कुछ वैसी ही एनालॉजी इन्होंने मैरिज की बैठाई है कि विक्टोरियन वुमेन, मैरिड वुमेन को स्लेवरी से कंपेयर किया है आपके जे.एस. मिल ने, वेयर ही सेज वुमेन आर लीगली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स. आपके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है एंड कोई राइट्स नहीं बनाए गए हैं कि आप अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी भी ले सकते हो. आपको कमाने की अनुमति नहीं है. फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू कंसिडर अ वुमेन फ्री? फ्रीडम तो आपने सारे टाइज ही कट कर दिए. दैट ब्रिज हैज बीन बर्न्ड बाय द सोसाइटी वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग कि वुमेन फ्री हो सकती हैं. सो जब लीगल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन राइट्स ही एक औरत को नहीं दिए गए हैं, वो किसके सामने एक स्लेव बन के रह जाएगी? अपने पति के सामने. द हस्बैंड हैज द एब्सोल्यूट पावर ओवर द वाइफ एंड नॉट जस्ट हिज
प्रॉपर्टी, उसकी खुद की बॉडी के भी ऊपर उसका अधिकार नहीं है, वेयर शी इज़ कंसिडर्ड अ चाइल्ड बियरिंग मशीन, कि अगर आपकी फैमिली डिमांड करती है कि आपको हर साल एक बच्चा पैदा करना है इन द टू प्रोक्योर अ मेल आयर, तो आपकी अपनी ही बॉडी के ऊपर कोई भी फ्रीडम नहीं है, कोई भी हक नहीं है आपका अपनी बॉडी के ऊपर, दैट यू कैन से नो टू फॉर योर ओन बॉडी, की योर बॉडी इज़ नॉट अलोइंग फॉर एनी अदर चाइल्ड बियरिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन द बॉडी ऑफ अ वुमेन. सो मैरिज लॉ ने डिनाई कर दिए हैं राइट टू प्रॉपर्टी टू अ वुमेन, राइट टू लीगल आइडेंटिटी एंड राइट टू एजुकेशन और प्रोफेशन. विक्टोरियन समाज में वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड, जो वुमेन बाहर जाकर नौकरी करना चाहती थी, इट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज एक्सेप्टेबल इन दैट सोसाइटी. एंड इस बात को आप सब लोग खुद से समझ भी सकते हैं कि हमारी जितनी भी विक्टोरियन फीमेल राइटर्स हैं वो अपने सूडोनिम को मेल सूडोनिम में लगाकर अपने वर्क्स को पब्लिश किया करती थी, बिकॉज अदरवाइज उनके वर्क्स की कोई भी वी कुड से की हैसियत नहीं होती या उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट. मिल कॉल्स फॉर पार्टनरशिप इन मैरिजेस बेस्ड ऑन इक्वालिटी, अफेक्शन एंड कंसेंट. ये जो कंसेंट वाला पॉइंट है, इट इज़ वेरी मच प्रेवलेंट फ्रॉम योर फर्स्ट वे फेमिनिज्म, कि मेरे ही बॉडी के ऊपर मेरा ही कंसेंट नहीं है, कि इट इज़ जस्ट द फैमिली ऑफ द मेल एंड द मेल जो कि मेरी ही बॉडी पर अधिकार जमा कर बैठा है. दिस एग्जैक्ट लाइन हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. द वाइफ इज द एक्चुअल बॉन्ड सर्वेंट ऑफ द हस्बैंड, नो लेस so as far as legal obligation goes than slaves commonly so called. Women in Victorian society, married women were considered no less than slaves. And exact this line has been asked in your exams. The husband was called the lord of the wife. भगवान है आपका पति आपके विक्टोरियन समाज में. एंड इफ़ यू लुक एट आवर इंडियन सोसाइटी टुडे, इट इज़ nothing has changed in 21st century as well. आपका जो आखिरी चैप्टर है वो बात करता है बेनिफिट्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी फॉर सोसाइटी. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द वुमेन दैट वी वाउच फॉर कि नहीं उनको राइट्स मिलने चाहिए, पर इफ़ यू गिव अ थॉट, हमारे समाज में अगर ये जो समाज के दो इक्वल पहिए हैं, अगर इक्वालिटी इनको मिल जाए तो कितना अच्छा होगा एंड बेनिफिशियल होगा हमारे समाज के लिए. जस्ट ट्राई टू थिंक कि सप्रेशन ऑफ वुमेन मीन्स हाफ द पॉपुलेशन की जो पोटेंशियल है वो आपने वेस्ट कर दी. इफ़ गिवन देम इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड चांसेस एंड द फ्रीडम, तो वो हमारे समाज में कितना और बेटर कर सकती हैं गिवन द स्फीयर्स दैट शी इज़ वेरी गुड एट. सोसाइटी विल बेनिफिट व्हेन बोथ men and women are free to develop their faculties, enter professions and contribute intellectually. The worth of a state is in the long run is the worth of the individuals composing it. So ये जो आपका ऐसे है बेसिकली आप बोल सकते हैं इट इज़ सो मच अहेड ऑफ इट्स टाइम अलॉन्ग विद आवर J.S. Mill, जो विक्टोरियन सोसाइटी में ही इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट मेल ऑफ योर 19th सेंचुरी, जो सामने आकर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन एंड उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं. एटलीस्ट वुमेन का पर्सपेक्टिव वो समझते हैं एंड उनकी वजह से कितनी ही कैंपेन्स चली थी एंड वुमेन के सफरेज एंड उनके वोटिंग राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. So he was supported by early feminist and suffragists and he was seen as the first male feminist thinker. इनके लिए इनको बहुत ज़्यादा we could say कि सोसाइटी से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था. एंड ऑफ कोर्स आप समझ ही सकते हो कि एक मेल होकर जब ये फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कितना कुछ इनको सुनना पड़ा होगा. इनकी वजह से आगे आने वाली जितनी भी लिबरल फेमिनिस्ट राइटर्स एंड थिंकर्स रही हैं लाइक वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन डे बेव्योर, बेटी फ्रीडन एंड मैनी मोर, वो इन्फ्लुएंस हुई थी इनके एसे से. नाउ व्हेन यू आर रीडिंग J.S. Mill, आई वुड नॉट ओनली आस्क यू कि आप सिर्फ और सिर्फ इनका ये एसे पढ़ के जाएँ, पर इनका अदर एसे एंड टर्म्स विच इज़ यूटिलिटेरियनिज्म जो 1863 में इन्होंने पब्लिश किया था, ऑन लिबर्टी हिज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एसे दैट बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए. द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 दैट वी जस्ट रेड, ऑटोबायोग्राफी 1873, प्रिंसिपल्स ऑफ
पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि ये इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, पार्लियामेंटेरियन थे, एंड पॉलिटिकली इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज अबाउट मार्क्सिज्म एंड फ्री मार्केट के बारे में दी हैं जो आपको बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। जस्ट एज वी रेड योर JS Mill टुडे, आपके इन सभी फेमिनिस्ट राइटर्स को आपको लिटरेचर स्टूडेंट के रूप में पढ़ के जानी चाहिए। इफ़ एट ऑल यू वांट टू रीड देम इन डिटेल, तो आप हमारे लिटरेरी थ्योरी के कोर्स का पार्ट बन के इन सभी फेमिनिस्ट राइटर्स, उनके कॉइन किए हुए सभी टर्म्स एंड उनके एसेज को इस कोर्स के अंदर बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। इफ़ एट ऑल यू वांट टू सी और टेक अ लुक एट ऑल द फ्री डेमो लेक्चर्स, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं फॉलोइंग विच आपको सारी डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स एंड माई अदर कोर्सेज आसानी से मिल जाएगी। डू गो अहेड एंड इस पर्टिकुलर ऐसे से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो आपको पता होने चाहिए। इफ़ इट ऑल यू आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर PYQ टेस्ट सीरीज, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड मैसेजेस ऑन दिस नंबर। आई एम होपिंग कि आज के ऐसे से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे एग्ज़ाम में जो एसेज एंड टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको बस ऊपर ऊपर से ना प्रिपेयर करके हम लोग उनको डिटेल से समझें। अगर आप इसी तरीके से क्रिटिकल एसेज को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन द नेम ऑफ द एसे दैट यू वांट मी टू टीच यू नेक्स्ट, एंड डू लेट मी नो कि आज का एसे आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया एंड कौन से और टॉपिक्स को आप एक्सपेक्ट करते हो दैट आई मस्ट टीच यू ऑन दिस चैनल। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।